एक डर, एक खतरा अभी भी बना हुआ है कि कहीं जो बांग्लादेश क्या किसी कट्टरपंथी इस्लामी ताकतों के हाथ में चला जा रहा है। जिस तरह का प्रोटेस्ट शुरू हुआ छात्रों का, उसमें जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ ने माइलेज उठाया, क्या फंडामेंटलिज्म लौट रहा है? और ये अगर ऐसा हो रहा है तो भारत के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। मेरे साथ तीन खास मेहमान हैं, जैसा कि मैंने आपसे परिचय कराया। लेफ्टिनेंट जनरल अता हसनैन साहब हैं, सैयद मुनीर खासरू साहब जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर रंजीत सेन साहब हैं। मेरा पहला सवाल खासरू साहब आप ही से है। पहली बात, क्या सिचुएशन है आपके देश में, क्या कैसा वहाँ दिख रहा है 24 घंटे से? इनफैक्ट अब तो ऑलमोस्ट 36 आवर्स नाउ जब शेख हसीना साहब वहाँ पर नहीं हैं। क्या सिचुएशन कंट्रोल में है? आप क्या कहना चाहेंगे? और उसी से जुड़ा हुआ सवाल, क्या देखते हैं आप कितनी जल्दी वहाँ इंटरिम गवर्नमेंट बन जाएगी? Thank you so much. My Hindi is not that well, so I'll prefer to speak in English. But if some दैट्स फाइन। portion, I'll make a mix and match. The situation, as you can imagine, when such a change happens, it goes to inevitable transition period. So, as you very correctly pointed out, it still has not been 48 hours. So, talks are going on even as we speak with the army chief, the president, and some of the civil society activists. What shape will the caretaker government take? How long it will stay? So I'm sure all of us have to be a little patient before those details come out. And as it so happens, there are a lot of speculations in the media. What will be the structure? Who will be in the interim government? So on and so forth. But Bangladesh is not new to such crises. We have weathered such storms in the past and we have prevailed. So I'm pretty sure after the wonderful, I would say, victory of the students and general public, and due to which the Prime Minister Hasina had to leave the country, people are still in a celebratory mood, which is very expected. But as days pass by, it will calm down, and all the celebration in the street will also sort of slow down, and then we can understand. So in this transit phase, I would not step in and do all the speculations that is out there. And let's wait a little bit and see what it is, because there's no point giving you two, three propositions. Then after 2, 3 days, you'll come back and tell राइट। me, "वो तो कुछ भी ठीक नहीं हुआ." जी। So let's wait a little. आई अंडरस्टैंड। बट लेकिन खासरू साहब, मेरा नेक्स्ट कनेक्टेड क्वेश्चन ये है, जो मैं भी संजीव वाधवा साहब से बात कर रहा था, जो कि एक बिजनेसमैन है आपके बांग्लादेश में, उनकी फैक्ट्रीज हैं। जैसा कि ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट इसलिए भी है, हमने देखा सिचुएशन जो हुई बांग्लादेश में जब से शेख हसीना थी प्राइम मिनिस्टर, पिछले 15 सालों में इकोनॉमिकली काफ़ी एडवांस किया आपकी कंट्री ने। इनफैक्ट कई सारे पैरामीटर्स में आप इंडिया से भी आगे निकल गए। लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि जिसके पिता ने देश बनाया, बंगबंधु, उनकी स्टैचू वहाँ तोड़ी जा रही है, उनकी बेटी को देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। 15 साल के जो हमको लगता था यहाँ बैठ के कि काफ़ी सफल उनका रिजीम रहा। ये सिचुएशन क्यों आई? एक अच्छी इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री को के प्राइम मिनिस्टर को इस तरीके से क्यों भागना पड़ा? क्या गलती हो गई हसीना साहब, शेख हसीना से? Well, you can find the answer in India itself. Last election, the ruling party economically seemed to be doing well. Then why did it lose so many seats? Because a lot of people in many parts of the India did not were not very happy with a lot of the thing that was going on. And it's your internal matter, but it will help me answer the question you have posed to me. So we have seen a lot of things happening in India, a lot of discord, a lot of initiative which had a sort of implication on religious minority. In Bangladesh's case, yes, to be fair to the Prime Minister Hasina, I mean the former Prime Minister Hasina, she did some good work on economy, definitely, no doubt about it. But this whole perception which she tried to sell, that, so long as the economy does well, as if other things, you know, civil liberties, right to speak freely without fear, those were very severely curtailed. And it was a challenge for Bangladeshi media to operate freely. So it is not a mutually exclusive proposition that if I have to develop economically, I have to suppress people's right to speak. And we Bangladeshis, if you look at our origin and history, we have been resistant to such kind of even sort, I would say, initiative or approach to muzzle people's voice. So
And if you look at the three elections we had, the first election when she came in 2008-9, largely it was free, fair, and she won. But subsequent election 2014, 18, 23, it was not participative, it was controversial. So when you have a situation in 15 years where people feel their right to franchise, I'm not talking about who would run the country better, Awami League or BNP or whoever, but people must have the right to exercise their franchise. Even in America, if people choose Donald Trump, then you live with Donald Trump for 4 years, and if you don't like, you bring somebody else. So why should we be deprived from that right? So that discontent was brewing for some time. So economic success was not enough to put that into rest. So what you saw, a very normal student-led movement, very quickly gained traction with cross-section of people, ordinary people, parents of the students, teachers, professional artists, and within a matter of weeks, a very strong, powerful government, which has lasted for 15 years, collapsed in 15 days. So what does it tell us? It tells us the sheer might and strength of people power, and which is a lesson for everybody in the region. Any dictatorial way of trying to suppress people's voice uh, does not work. Right. And I hope it's a good lesson for others in the neighborhood, so that we all learn from each other. I hope I have been able to answer your question. इनफैक्ट जनरल हसनैन मैं आपके पास आना चाहूँगा और वो इस सवाल के साथ लेते हुए कि वो जो स्टैचू को बंग बंधु मुजीबुर रहमान साहब के स्टैचू के साथ जिस तरीके से उनके ऊपर उसको तोड़ने की कोशिश की गई, फिर तोड़ दी गई, ये तस्वीरें बहुत ही पावरफुल तस्वीरें थी कल के रिजेंटमेंट की। और ये उस शख्स के साथ हुआ जिसने बांग्लादेश बनाने के लिए अपनी जान दे दी। ऐसे में आज की जनरेशन जो ढाका में है, जो यंगस्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चाहे जहाँ से भी उनको मदद मिल रही हो, क्या मैसेज जा रहा है दुनिया को कि जिसने आपके मुल्क को बनाया, जिसकी वजह से बांग्लादेश आज एग्जिस्ट करता है, आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, इसको कैसे देखना चाहिए? हाउ डू यू सी इट? देखिए सुमित साहब, इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती हैं कि भारत के अंदर हम शेख मुजीब के और उनके परिवार के साथ बहुत ज्यादा सहमति रखते हैं। मैं उनमें से हूं जो 1971 में बंगा बंधु को लेने गया था इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मैं दिल्ली में 18 साल का युवक था और मैं गया था उनको लेने के लिए, तो आई हैव अ लॉट ऑफ सेंटिमेंट फॉर। मगर मैंने इस चीज के ऊपर बात मुनीर साहब से भी कल की है और भी कुछ बांग्लादेशी दोस्तों के साथ की है, और मेरी राय ये बनती है कि देखिए जिस तरह से हम भारत में देख रहे हैं उस तरह से वो शायद बांग्लादेश के अंदर से लोग नहीं देख रहे हैं इस विषय को। हमारा परसेप्शन ये है कि बहुत काम किया था, अर्थव्यवस्था बहुत बढ़ी थी, 25 मिलियन लोग जो है वो पॉवर्टी से निकाल के उनको ऊपर लाया गया था। मगर अब उसके बरखिलाफ मुनीर साहब आपको कह रहे हैं कि ये सब बहुत अच्छा था, मगर 15 साल से जो एस्पिरेशन था लोगों का कि एक वोट डालें, एक इलेक्शन में डेमोक्रेटिक तरीके से शिरकत करें, वो कभी चांस नहीं मिला। और जिसको कहते हैं नॉन पार्टिसिपेटिव इलेक्शंस जो थे, वो 3 इलेक्शन इस तरीके से हुए जिससे कि लोग डिसएम्पावर हो गए वर्चुअली। तो मेरे ख्याल में दुनिया भर में इस तरह की स्थितियां आती हैं। यही स्थिति आपने कोलंबो में भी देखी है पहले, ये हमने अरब स्प्रिंग में भी देखी थी बहुत जगहों पर, और ये अलग अलग बरखलाफ देशों, इराक में हमने देखी थी। तो ये स्थितियां आती हैं। लगता है उस वक्त के ये बहुत बवाल मचा हुआ है, जिस तरह से हमको वहां के सीन दिख रहे हैं, आपके टेलीविजन के अंदर से दिख रहे हैं हमको, वो जब इकट्ठा एक देखा जाता है तो लगता है कि पूरा देश बिल्कुल उबल गया है जी। मगर जब थोड़ा हटकर देखा जाता है तो देखते हैं कि ये एक रंज निकल रहा है। शायद 2, 3, 4 मैक्सिमम हफ्ते भर में ये निकल जाएगा, और उम्मीद करते हैं जी। हम उम्मीद करते हैं कि बांग्लादेश वापस समानांतर स्थिति के अंदर पहुंच जाएगा, और इसकी कोई वजह नहीं है कि नहीं पहुंचे। सिर्फ ये वजह हो सकती है कि बाहर के कुछ बैरूनी ऐसी इन्फ्लुएंस है जो चाहती है कि ये बवाल जो है वो चलता रहे, और खास तौर पे इसलिए क्योंकि भारत के साथ जो संबंध बांग्लादेश को है, उनके ऊपर किसी ना किसी तरह से बाधा पड़े।
जनरल साहब, एक और सवाल आपसे, फिर मैं प्रोफेसर साहब के पास आता हूं, और वो ये कि दुनिया में अगर दो देशों के बीच बॉर्डर शेयरिंग की बात की जाए तो भारत और बांग्लादेश के बीच पांचवी बड़े बॉर्डर्स हैं। अगर हम नंबर की बात करें, करीब 4,100 किलोमीटर हम शेयर करते हैं। 5 हमारे स्टेट सीधे तौर पर बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं। ये माना गया, ये दिखा है पास्ट में कि बहुत से इंसर्जेंट ग्रुप्स जो हमारे स्टेट्स में डिस्टर्बेंस पैदा करते थे वो बांग्लादेश से ऑपरेट हो रहे थे एक वक्त में। इस सिचुएशन में जब आज वहाँ पर अस्थिरता है, जब ये दिख रहा है कि शेख हसीना की सरकार नहीं और एक इंटरिम गवर्नमेंट आने वाली है जिसमें कुछ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट भी हो सकते हैं, ऐसी सिचुएशन में भारत के लिए अपने बॉर्डर्स पर किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था होनी चाहिए, पहला सवाल। और कितना बड़ा खतरा है असम के लिए, मेघालय के लिए, मिजोरम के लिए? देखिए, ये स्थिति इस वक्त बांग्लादेश में ऐसी है कि इसका ब्रॉड असेसमेंट ही हो सकता है और वैसा डीप असेसमेंट करना जरा इस वक्त मुश्किल होगा। मगर इस तरह की जो सिक्योरिटी की स्थिति सिचुएशन है, स्थिति है, वो ना कि सिर्फ बॉर्डर पे, मगर हमारी तवज्जो जो है, हमारा फोकस जो है, वो बांग्लादेश के अंदर भी होना पड़ेगा। जो बांग्लादेश के अंदर होगा, अगर इस तरह के डिस्टर्बेंस और टर्बुलेंस जो है वो चलता रहा, हफ्ते भर 10 दिन और हो गया, तो इमीडिएट इसका इम्पैक्ट ये होगा कि शरणार्थी यहां से निकलना शुरू कर देंगे। मैंने देखा था 1971 में भी इसी तरीके से 10-12 दिन 15 दिन के अंदर शरणार्थी निकलकर और हमारे बॉर्डर्स की तरफ आने लगे। वो जो है खतरा से मोड़ लेना है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। जहां तक बाकी चीजें हैं, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट की, उसमें यह है कि डिपेंड करता है कि किस तरह की सरकार आती है वहां पर। जो अगर भारत के साथ सहमति रखती है, कोऑपरेशन होता है, तो फिर समानांतर सिचुएशन होकर और ये चलता रहेगा जैसे हमारा रवैया चला है। मगर अगर किसी जी। हालत में ऐसी सरकार आए जिसके साथ भारत के का कुछ हद तक अनबन है, तो फिर स्थिति वही हो सकती है जैसे पहले थी। मैं समझता हूं कि पिछले 15 साल में खास तौर पे जो अच्छी चीज हुई है हमारे संबंधों के वजह से, हमारे संबंधों में, और खास तौर पे शेख हसीना के वजह से, वो ये हुई है कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है हैज बीन फ्री ऑफ दिस काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम। जो ये थ्रेट्स जो बनते रहते थे, वो बिल्कुल फ्री रहा है उससे। मगर अगर कुछ बरखलाफ कार्रवाई वहां हो गई, बरखलाफ स्थिति हो गई, तो फिर इसके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। प्रोफेसर सेन, अब मैं आपके पास आना चाहता हूं। थैंक्स फॉर योर पेशेंस, आपने अपनी बारी का इंतजार किया। अब पहला सवाल तो ये है कि इस सिचुएशन में जब चाइना का इंटरेस्ट बांग्लादेश में है, जब अमेरिका का इंटरेस्ट था कि शेख हसीना वहां से हट जाएं, एक ऐसा वक्त दुनिया का जब चाइना और अमेरिका अमूमन दो बड़ी लड़ाइयों में एक दूसरे के विरोध में खड़े हुए हैं, इस जगह को लेकर दोनों का इंटरेस्ट एक जैसा था, बांग्लादेश को लेकर, कि शेख हसीना दोनों को पसंद नहीं थी। ये इन जनरल जो मैं मीडिया में पढ़ रहा हूँ, इन जनरल जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, जो एडिटोरियल्स पढ़ रहे हैं, बांग्लादेश के हों चाहे इंटरनेशनल प्रेस के हों, आपको क्या लगता है अब सिचुएशन कहाँ जा रही है? जो नई गवर्नमेंट बनती दिखाई दे रही है, वो क्या हिंदुस्तान की इस सरकार के साथ, जो सक्सेसफुल 3 टर्म हुए नरेंद्र मोदी की सरकार के, उनके साथ संबंध कैसे होंगे? आपका लिंक, प्रोफेसर सेन, कैन यू हियर मी? कौन बनाती है वहां पे? अगर आपका हाँ आपका सुनाई दे रहा है। कनेक्शन चला गया है मेरे साथ, प्रोफेसर सेन। जी अब बोलिए, अब बोलिए। यू कैन स्पीक नाउ, आई कैन सी यू। मैं ये कह रहा था कि जो भी सरकार बांग्लादेश में आएगी, अगर जो इंटरिम सरकार जो चुनी जाएगी, उस वो अगर आती है, कितना दिन रहेगी और कितने दिन बाद फिर से चुनाव होंगे और चुनाव में कौन सी सरकार आती है, ये इस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा कि भारत के साथ संपर्क किस दिशा में जाए। क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि जो बांग्लादेश की सरकार, नई जो सरकार बनेगी, उसके जो पास्ट है, जो भी नई सरकार होगी, अगर इंटरिम सरकार हुई वो तो अलग बात है क्योंकि आर्मी के सपोर्टेड है, लेकिन उसके बाद जब प्रॉपर इलेक्शन के द्वारा जो सरकार बनेगी, उस सरकार में कौन सी पार्टी आती है, उसके ऊपर बहुत सारा चीज निर्भर करता है कि भारत के साथ रिलेशन कैसा रहेगा। और मेरे ख्याल से ये सिर्फ चाइना और यूएस की ही बात नहीं है। एक और तीसरा देश है जिसका मैं नाम लूंगा, वो है पाकिस्तान, जी। जिसको बहुत लोगों ने शायद नजरअंदाज कर दिया है कुछ हद तक। लेकिन मैं पाकिस्तान को इसलिए यहाँ पे लाऊंगा क्योंकि कुछ एक चीज जो पिछले 1-1.5 हफ्ते के अंदर में
बांग्लादेश में हुई है, उसमें पाकिस्तान का एक रोल होना लगता है कि एक कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम डेफिनेटली है। आप ये इशारा कर रहे हैं कि जो अनरेस्ट दिखाई दिया सड़कों पर, जो छात्र दिखाई दिए, क्योंकि ऐसी खबरें भी आईं कि जमायत इस्लामी के लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल थे स्टूडेंट्स के साथ, जो कोटा का रिजर्वेशन का इशू चल रहा था। क्या आपको लगता है कि ये सब पाकिस्तान द्वारा इंस्टिगेटेड था? आईएसआई का रोल कहीं आप देखते हैं प्रोफेसर साहब? देखो, क्या जो within the great code, but it will be from Pakistan because China and US, but US remember क्योंकि US में जब ये लास्ट इलेक्शन हो गया और वो फिर से कह रहे हैं कि अरे कुछ 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 करो क्योंकि प्रॉपर एक तरह से प्रॉपर उसमें ये कर करके बट लेकिन हुआ नहीं क्योंकि द मेन एक तरह से तब और जब कुछ दिन और थोड़े देर बाद उसके बाद और क्या होगा उस टाइम पे क्या होगा एकदम मतलब एक तरह से इट्स लाइक एब्सोल्युटली पूरा इट्स जस्ट दैट दे नो दैट दे विल बी कमिंग ओवर क्योंकि किसी भी हालत में क्योंकि ये करना है और एक तरह से पूरी तरीके से प्लान किया और यही इस तरीके जो जी। और क्या करेंगे ये तो करना ही है इसमें और कोई चारा नहीं है तो अल्टीमेटली डिवाइन करता है कि क्या होगा क्योंकि उसके बाद कौन अ, जनाएगा सो अब उसके बाद डिपेंड करता है क्योंकि अगर let me डिपेंड put this करता question है to मुनीर ठीक साहब। आप बांग्लादेश में हैं, हमसे बेहतर वहाँ की सिचुएशन को जान रहे हैं। मुनीर साहब, क्या इस्लामिक फंडामेंटलिज्म लौट रहा है? क्या इस तरह की हुकूमत बन सकती है जिसमें फंडामेंटलिस्ट हावी होंगे आने वाले वक्त में? आपको क्या लगता है? I will, to my Indian friends, I would request listen very carefully. If religion was the sole basis of relationship, we would still be East Pakistan. We broke up from West Pakistan because we felt religion itself was not enough for us to be together. We had significant cultural differences, other differences. People in India tend to often forget that, how this war started. 52 language movement. Then we had 67, 69, 71. So we parted off from our sister country because of differences. You expect after becoming independent, we'll go back and become closer with them. Let me ask you this question. Number one. Number two, just in any society, there'll be some bits and pieces of political organization. You have RSS, you have BJP, you have a lot of outfits. So do we. So I don't see any unusual situation in Bangladesh. By and large, people are liberal, progressive, God-fearing Muslims, as I am. So I'm not sure why this always becomes a big issue, number one. Number two, in the student movement, it was led by general student. Then later on, maybe some political elements got involved, BNP, Jamaat, maybe. And as the scope widened, professional groups also joined in, artists, parents, teacher. So it became a all-inclusive movement. If part of the movement, some of the people were from Jamaat and BNP, they were there. And I don't know why this big issue is being made out of Jamaat and BNP, because this was a movement led by students. And even today, the 6 student coordinator who are speaking to the army chief, to the president, are non-political. They are not from Jamaat, they are not from BNP, forget about army. So I would request, please try to understand the nature of this movement. Yes, there can be some pockets of elements of Jamaat, BNP, who took advantage of this and supported them from behind. Definitely, it can be. Who Right. does not? If in UP, Uttar Pradesh, BJP government is there, something happens, some token of religious group takes advantage, something similar here. But that is not to say a purely non-political general student We movement. have, yeah, Yes. I got your point. We have General This Hasnain I'm जो कि, saying, because to my Indian friends, I would request, okay, while your concern is legitimate, don't
overblow it. जनरल हसनैन, क्या हम ज़्यादा पढ़ रहे हैं सिचुएशन में? क्या हम ज़्यादा चिंतित हैं इस्लामिक फंडामेंटलिज्म के नाम पर? इंडिया में ये अप्रीहेंशन कि शेख हसीना नहीं है, कोई और सरकार बनेगी तो इंडिया के लिए डिसएडवांटेजियस हो जाएगा, क्या हम ज़्यादा इस बात को लेकर अप्रीहेंसिव हैं? आपका व्यू? सुमित साहब, मुझे तो लगता है हम ज्यादा चिंतित नहीं हैं। जो हम दिखा रहे हैं, जो हम असेस कर रहे हैं, वो बेशक सही है और हम इस स्थिति के ऊपर निगरानी रख रहे हैं। साथ में जो बांग्लादेश में इतिहास बना है उसको ध्यान में रख रहे हैं। देखिए, मैं सहमत हूं मुनीर साहब के साथ बिल्कुल कि ये बिल्कुल शायद पॉलिटिकल मूवमेंट होगा। ये स्ट्रीट्स के अंदर जो यंग लोग आए हैं, शायद ये अपना एक सप्रेस्ड जो सेंटिमेंट है उसको एक्सप्रेस कर रहे हैं। मगर हम भूल नहीं सकते एक चीज कि रिविजनिस्ट फिलॉसफीज भी होती हैं। लोग दोबारा आकर कायम करना चाहते हैं जो पहले हुआ था। ये कहना कि पाकिस्तान से हम हट गए हैं और अब पाकिस्तान के साथ कोई संबंध ही नहीं है, ये तो शायद सरासर गलत होगा, क्योंकि पाकिस्तान का प्रेजेंस, आईएसआई का प्रेजेंस जितना बांग्लादेश के अंदर है वो हम जानते हैं, और वहां से कितनी कोशिश करते हैं वो नॉर्थ ईस्ट के ऊपर हावी होने के लिए, वो भी हम जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि जो मुनीर साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं तो उम्मीद करता हूं यही कि वो बिल्कुल सही है। मगर क्योंकि हम नेशनल सिक्योरिटी को देखते हैं, हमारा काम, हमारी ड्यूटी बनती है, हमारा फर्ज बनता है कि हम चेतावनी देते रहें और इस स्थिति के ऊपर निगरानी ऐसे रखें ताकि एकदम से हम चौंक ना जाएं इसकी सिचुएशन से। राइट। एक आखिरी कमेंट में प्रोफेसर सेन आपका लेना चाहता हूं इस सिचुएशन में जो इस वक्त ढाका में दिखाई दे रही है और जो कि आज काफ़ी हद तक सबसाइड भी कर गया। कुछ बिजनेस शुरू हुआ, लोगों ने अपने शॉप्स वगैरह खोले, कुछ ऑफिसेज भी खुले जो वहाँ से रिपोर्ट्स मिल रही हैं। आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में आवामी लीग का कोई भविष्य बचा है? ये बहुत ही मजेदार सवाल है, क्योंकि आवामी लीग का जो अभी स्थिति है, अगर आज से 10 दिन पहले का जो कहानी था और वो कहानी पूरी तरीके से उलट चुका है, और अभी जो स्थिति है और आगे जाके मेरे ख्याल से जब स्थितिशील हो जाएगी एक तरह से बांग्लादेश के पूरे देश के अंदर, अवामी लीग को मेरे ख्याल से वापस आने में एक तरह से माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा होगा। एक तरह से अब वापस आना अवामी लीग के लिए ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक क्विक कमेंट और हसनैन साहब, क्या शेख हसीना को दिल्ली में रहना चाहिए लंबे समय तक? देखिए, ये एक बड़ा देखिए, दिलचस्प सवाल है इस वक्त। जनरल साहब से सवाल है मेरा, जनरल साहब से सवाल है। ये एक बड़ा दिलचस्प सवाल है इस वक्त। हालांकि शेख हसीना इस वक्त हिंडन बेस में शायद हैं, किसी न किसी गेस्ट रूम में और अंडर सिक्योरिटी हैं। भारत का संबंध उनके साथ बहुत पुराना है, उनके पिताजी के साथ भी बहुत पुराना संबंध है। हम उस तरह के लोग नहीं हैं इस देश में जो अपने संबंधों को तोड़ देते हैं इस तरीके से। मैं समझता हूं कुछ वक्त के लिए, जब तक कि स्थिति कुछ और इम्प्रूव हो जाती है, कुछ आगे के बारे में कुछ सोच विचार कर सकते हैं, शेख हसीना को भारत के अंदर रहना चाहिए। मगर एक परमानेंट बेसिस पर पनाह देना, मैं समझता हूं कि वो भारत के पक्ष में, भारत के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट में नहीं होगा, क्योंकि जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो भी सरकार आए, उस सरकार के साथ हमारे संबंध बने और वैसे ही मजबूत संबंध बने। बिल्कुल। अच्छा, if I may add, मुनीर साहब, जो जनरल आता भाई is someone I respect a lot. One thing India must remember, please, as a friend, build friendship with people of Bangladesh. Don't build just friendship with one party, one person. That is my advice as a friend and well-wisher, because perception here is India is too aligned with one party, one person, which I think is not helpful for India. ये मेरा दिल से बात है. So this would be my request to ठीक है, friends in India. हसनैन साहब, रिस्पॉन्ड टू दिस। मैं बिल्कुल सहमत हूं जो मुनीर साहब कहते हैं। वी शुड बी
इन कांटेक्ट विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश। बिल्कुल कल भी इन्होंने मुझे यही सलाह दी थी और मैं इनके साथ सहमत हूं इसके साथ। मगर जैसे मैंने पहले भी कहा, हम उस तरह के लोग नहीं हैं, हम उस तरह का देश नहीं है। हम जिसके साथ संबंध रखते हैं, बनाते हैं, उनके साथ रखते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत पुराना ऐतिहासिक संबंध है उनके साथ, उनके पूरे खानदान के साथ। तो इसलिए एकदम से हाथ छोड़ना इस तरीके से वो भी सही नहीं होगा। कुछ हद तक हमें उनका जी। साथ देना पड़ेगा, मगर उसके बाद अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक हमें बांग्लादेश की नई सरकार के साथ संबंध बनाने पड़ेंगे।